Is it fair to say that Amitav Tiwari today is India's most credible name in election analysis? Amitav Tiwari is with us, political commentator. Amitav Tiwari, thank you. अमिताभ जी की किसके पक्ष में है? Amitav Tiwari, political strategist and So that is for the people To to decide. न्यूट्रल लोग आज की डेट में कम हैं जो डेटा या किसी पे बात करते हैं. डेटा पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? रेटोरिकल. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मुझे बड़ा फैसिनेट करता है. मैं पॉलिटिशियंस को सबसे बढ़िया कम्युनिकेटर मानता हूँ. यू नो, you've seen this from close quarters. आप चैनल्स में उनके साथ बैठते हैं. How has political communication evolved, changed over the years? Social media has actually democratized the entire political communication space. Democratized. Democratized because now everybody has a say. 2014 is the first social media election of India. 2019 the first WhatsApp election of India, and 2024 was the first YouTube election of India. एक्सप्लेन करिए उसको. वोटर बिहेवियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. उसमें कुछ बदलाव आया है ओवर द इयर्स. हैज द वोटर बिकम स्मार्टर vis-a-vis these polls? Welcome back to Beyond My Brand by Neeraj Jha, and I'm your host. Today's guest is Amitav Tiwari. Many of you would have seen him on television. Today he is India's leading election analyst, political strategist, and a very successful entrepreneur, very respectable voice. Amitav has built his credibility in the last 6-7 years that he's been on the other side. When I say other side, Amitav is a banker by profession. So he used to crunch financial data earlier before he started crunching the political election data. It's a matter of great pride for me to have Amitav with me. I remember 20 years back, we traveled in the same train, and that was our first meeting. We met in the train. I boarded a train from Ranchi to Bombay, the same train. Amitav boarded from Bokaro, and we got talking, and there's some the liking that we developed for each other. And that liking has stayed. While Amitav went all over, places, we've stayed in touch, barring that, a few years in between. And today, I'm so happy, delighted to have you, Amitav, in front of me. Thank you, sir. Not at all. He calls me sir and bhaiya. Such is the man's humility, and no wonder. Somebody wants to look back, Amitav. You come from Bokaro, city in the vicinity of Ranchi, where I come from. Take us to your childhood. कैसा था आपका बचपन और आपकी upbringing और वो माहौल? I was born in Sasaram, Bihar then, but born and brought up in Bokaro. तो बोकारो में सेल प्लांट था एक. तो पिताजी सेल में काम करते थे. तो born in a middle class family. My mother was a housewife. तो मिडिल क्लास के जो वैल्यूज़ हैं शुरू से imbibed हैं हम लोगों में. Sincerity, hard work is one of the significant values which I have learned from being in Bokaro. और बोकारो में स्कूल्स का एक बड़ा अच्छा नेटवर्क. तो वहाँ पर सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ा मैं और 10 तक, और GGPS करके एक स्कूल था, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, उसमें 11th और 12th किया. तो वो स्कूल्स में भी एक बेसिक फाउंडेशन और स्किल सेट्स डेवलप हुए टू टेक ऑन लाइफ. पिताजी एक समय पर लेबर यूनियन में 2 साल प्रेसिडेंट थे. सो हिज टर्म इज स्टिल रिमेंबर्ड इन बोकारो फॉर द वेलफेयर मेजर्स टेकन ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो यू कैन से सॉर्ट ऑफ अ रब ऑफ इम्पैक्ट, या जो पिवट करियर में लिया मैंने, उसका एक नींव जो है वो उस वक्त बोकारो में रखी गई थी. तो बोकारो से निकलने के बाद दिल्ली से ग्रेजुएशन किया. उसके बाद 3 साल इंटर्नशिप किया सीए इंटर्नशिप किया दिल्ली में. देन आई ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री डूइंग ऑडिट्स ऑफ बिग ब्रांड्स, बैंक्स लाइक अ बैंक ऑफ बड़ौदा, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये सब जो भी ऑडिट्स करते थे. और 2004-06 में मैंने MBA किया यहाँ से, मुंबई से, KJ सोमाया से.
और 2006 में प्लेसमेंट हुआ कि क्रिसिल में पहली जॉब लगी, डे जॉब, आई मीन यू कैन से डे ज़ीरो प्लेसमेंट क्रिसिल में हुआ। जब बोकारो में था तो न्यूज़पेपर्स पढ़ता था और मैगजीन्स पढ़ता था। मुझे करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट था और फाइनेंस में भी बहुत इंटरेस्ट था उस वक्त। तो एक सपना था कि मुझे सीए बनना है। तो जब मैं बोकारो से निकला, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स के बाद भी मैंने कॉमर्स लिया, तो लोगों को अचंभा उस समय पे, लार्जली इंजीनियरिंग डॉक्टर का एक क्रेज़। तो बट कॉमर्स पढ़ने की इच्छा जताई और पेरेंट्स वर सपोर्टिव, तो आई डिड कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स एंड देन सीए इंटर भी पास हुआ मैं 3 साल जब मैंने आर्टिकलशिप किया, और फिर एमबीए फाइनेंस किया और एक कॉर्पोरेट जॉब में लैंड किया मैं क्रिसिल में 2006 में। तभी हम लोग शायद मिले थे और हाँ। हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अमिताभ, आज अमिताभ इज़ अ प्रोमिनेंट फेस ऑन टेलीविज़न, जैसा कि मैंने बोला, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग election analyst, political strategist, and of course he's a founder of a company which is doing very very well. आज ये जिस पोजीशन पे हैं, मेरे ख्याल से वो सबको दिखता होगा, बट he's been at it since 2019, 6-7-8 साल का जो आपका जो वो है। अब मुझे वो भी समय याद है अमिताभ, जबकि things weren't quite well with you, as it has been with all of us, right? So you've also gone through that period of sweat and turmoil. उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे अमिताभ। डेटा क्रंचिंग तो आप शुरुआत से कर रहे थे, पहले आप फाइनेंशियल डेटा करते थे, अभी आप पॉलिटिकल डेटा करते हैं। ये स्विच जो आपने, ट्रांजिशन आपका हुआ, कुछ ऐसा ट्रिगर था कि साहब ये मुझे नहीं करना है या मुझे ये अब से करना है, कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन था? ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक नींव तो थी। जब 2000 जब मैं बोकारो में था तो एक पॉलिटिकल, एक और यूपी बिहार वाले को एक पॉलिटिकल कीड़ा होता है बिल्कुल। तो अब जब मैं बैंकिंग करियर में 4-5 साल बिताने के बाद, तो 2013 के अराउंड अपना एक ब्लॉग शुरू किया, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत उनके लैंग्वेज में पकाता था अपने ये पॉलिटिकल ज्ञान और एंगल्स। थोड़ा डिफरेंट था मेरा टेक चीज़ों के ऊपर, और डेटा बैक भी था। उस समय उतना डेटा बैक कोई बात करता नहीं था। लार्जली पीपल वर गिविंग ओपिनियन, करेक्ट, नॉट बैक्ड बाय एनी डेटा। या तो मेरा एक फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड निशांत, IIT कानपुर का पढ़ा हुआ, उसने बोला कि यार तुम हम लोगों को बहुत बोर करते हो अपने ज्ञान से, तो ब्लॉगिंग शुरू हुआ था उस वक्त, तुम्हें पब्लिक को बोर करना शुरू करो, पब्लिक को बोर करो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो भाई। हाँ। ठीक है भाई। तो मुझे उतना टेक्नोलॉजी नहीं पता था, तो वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग शुरू किया और दोस्तों ने ही नाम दिया उसका politicalbaba.com। This was in 2013. This is in 2013 जुलाई। So at the peak of Modi's first campaign, जब पूरा भारत मोदी के लिए एक तरह से रूट कर रहा था और एक पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर था, एक बदलाव की लहर थी, 2G, CWG, जीजा जी, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। सो इन जनवरी व्हाट हैपेंड, तो मैंने फिर ब्लॉगिंग शुरू किया, और उस समय ऐसा जुनून था कि बैंकिंग जॉब भी था, मैं रोज कुछ ना कुछ लिखता था, और कभी थक हार के आता था तो 1 बजे 2 बजे रात को अचानक उठता था और एक डेली ब्लॉग लिखता था। क्या बात। जनवरी में द गार्जियन यूके ने एक पोल रन किया ट्विटर पर, इस वक्त ट्विटर, एक्स फॉर्मरली ट्विटर, to nominate people who present an alternative view on India and general elections. उस समय पे political बाबा कौन है, nobody knew because of my code of ethics in the banking sector. तो मेरा इंटरव्यू गार्जियन में पब्लिश हुआ 2014 जनवरी के आसपास। तो जो ब्लॉग पे there used to be 100-200 visits on a particular day, it jumped to 2,500-3,000 per day. इतना ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो। Was that the trigger? जब ये आपने, when you made up your mind कि अभी हमको यही करना है? One of the triggers, क्योंकि थोड़ा एक उस समय सोशल मीडिया नया था, आप जो वायरल होते हैं तो आपको एक अंदर से एक सेंस ऑफ अच्छा लगता है। अचीवमेंट, सही बात, आप आज लोग जान रहे हैं। और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट सारे पब्लिकेशंस, डिजिटल सोशल मीडिया शुरू हुआ था, करेक्ट, पे लिखना शुरू किया, लेकिन अभी भी जानता नहीं था कोई कि पॉलिटिकल बाबा है कौन, वो इस तो एक मिस्टिक था कि पॉलिटिकल anonymous, right? This was anonymous, this was,
लार्जली अनोनिमस। तो ऐसा रहा कि फिर मैं 2000 जस्ट चुनाव के बाद I got an opportunity in ABN AMRO दुबई, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया 2014 जस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। और वहाँ पर फिर मैंने देखा कि भाई अब यहाँ कौन पता कर रहा है कि पॉलिटिकल बाबा कौन है, या अमिताभ तिवारी हैं भी, तो ABN AMRO इज अ डिस्टेंट बैंक, दुबई इज नॉट फार ऑफ बट स्टिल डिस्टेंट फ्रॉम मुंबई और इंडिया पर से। तो वहाँ जा कर के फिर मैंने खुद को रिवील किया कि अमिताभ तिवारी इज पॉलिटिकल बाबा, कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो जिनको पैशन है, पॉलिटिक्स का कीड़ा है और वो पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं। तब जा कर के लोगों को समवेयर अराउंड 2015 परहैप्स लोगों को पता चला कि पॉलिटिकल बाबा कौन है। फिर आप इंडिया आए, फिर आपने अपनी कंपनी सेटअप की। फिर इंडिया आया तो अब बैंकिंग में आई वेंट थ्रू वेरियस रोल्स। सो आई वाज अ क्रेडिट एनालिस्ट, या I was in risk, and I ended up with being a relationship manager. So I saw the entire phase of कॉर्पोरेट बैंकिंग। corporate banking में। तो essentially giving loans to corporates in energy and commodities sector, उस वक्त metals and mining और oil and gas clients देखता था। तो एक data analysis of course समझ में आता था, corporate strategy, demand supply, pricing, whether we should give loan to this particular company Yeah, or not, yeah. defending in committees, या कमिटीज में पास कराना, Yeah. जब रिस्क मैनेजर बना तो उसी फाइल को अप्रूव करना, और जब रिलेशनशिप मैनेजर बना दुबई में तो उन क्लाइंट्स का रिलेशनशिप हैंडल करना। तो ये एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड वहाँ से समझ आया, वहाँ से सीखा मैंने। और जब मैं इंडिया वापस आया 2016 एंड 17ish, तो जो मुझे इंडिया में सैलरी 2.5 साल पहले मिल रहा था वो भी कोई ऑफर नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी वाज बार्गेनिंग सॉर्ट ऑफ। या तो जो काम मैंने सोचा था कि मैं 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले शुरू करूंगा, 1-2 साल पहले, ये आपके दिमाग ये में मेरे clarity दिमाग था? में उस वक्त तक ग्रेजुअल प्रोसेस था, तो एस्टेब्लिश हो गया था कि आई विल क्विट बैंकिंग एंड डू समथिंग इन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल कमेंटेटिंग, इलेक्शन एनालिसिस, समवेयर 2021-22 when I have a significant corpus and I can take that risk. प्रशांत किशोर जी का कहीं कोई रोल, उनसे इंस्पिरेशन मिला आपको? प्रशांत किशोर जी, जब मैं 2015 में था तो ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर जी ने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया, जो इंडस्ट्री बिहाइंड द सीन्स काम करती थी, अंडर द रडार काम करती थी, वो खुल करके 2014 में सबको विजिबल हुआ। तो एक बार उनसे कनेक्ट भी हुआ था एंड बात थी कि आई वुड ज्वाइन हिज कंपनी। एट दैट टाइम इट वाज CAG और परहैप्स IPAC 2015 हिज कंपनी 2015 में बातचीत हो गई थी जब मैं दुबई में था। तो बट समहाउ थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, सम टर्म्स एंड कंडीशंस वी बोथ डिड नॉट अग्री टू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाँ, मतलब इस इंडस्ट्री के अगर जननी वो हैं तो उनसे ही इंस्पिरेशन लिया ही है, हमने सबने लिया है जो भी इस फील्ड में काम करता है। यशवंत देशमुख जी भी हमारे मेंटर हैं, क्योंकि वो दुबई रहते थे उस वक्त, और मैं उनको मिला था 2016 में। आई जस्ट सॉट टाइम फ्रॉम हिम एंड ही स्पेंट 2.5 hours विथ मी। मैंने उनसे काफ़ी सवाल पूछा, क्या है इंडस्ट्री, क्या है, शुड आई टेक अ प्लंज और नॉट टेक अ प्लंज, हाउ इज़ इट मोनेटरली। तो उन्होंने अच्छा, और आज भी मेरे मेंटर हैं, और आज भी, और अभी तो कई और अभी पैनल्स में साथ में आप लोग रहते हैं। हमारे साथ पैनल्स पे भी रहते हैं, कॉन्क्लेव्स में भी, जहाँ भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, NDTV कॉन्क्लेव्स में हम लोग एक साथ बैठते हैं। दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर हिम एंड ही ऑल्सो इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि भाई एज अ मेंटोर कि जिस बच्चे को मैंने गाइड किया, आज वो हमारे साथ बैठ रहा है, किसी भी कॉन्क्लेव में, किसी भी इलेक्शन के ऊपर चर्चा करता है। जब 2017 में वापस आए तो आई मेट तुषार पंचाल थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। ही हैड अ स्टार्टअप कॉल्ड वॉर रूम स्ट्रैटेजीज, और उनके पास 2 क्लाइंट्स थे उस वक्त, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, ये 2 क्लाइंट्स थे उनके पास, और वो भी एक स्टार्टअप थे, उनको भी लोगों की ज़रूरत थी। शिवराज सिंह चौहान उस समय चीफ मिनिस्टर थे और रमन सिंह भी तो चीफ मिनिस्टर, और 2018 में चुनाव था, तो ही ऑल्सो वॉज ऑन द लुकआउट फॉर पीपल, और मिले हम लोग। एंड तो उस वक्त मैंने
1/3 ऑफ सैलरी व्हाट आई वाज गेटिंग इन बैंकिंग पे शुरुआत है. What you getting in Dubai? व्हाट आई वाज गेट नॉट इन दुबई. दुबई का तो सैलरी यहाँ पे In तो India, मैच नहीं कर okay, before you- जो इंडिया में मुझे 2.5 साल पहले जो सैलरी मिल रहा था इन हैंड, 1/3 पे आपने उसका 1/3 पे मैंने ये काम, इस फील्ड में मैंने एंट्री मारी. बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि विद इन अ ईयर और 2 आई विल बी एबल टू मैनेज. और फैमिली का भी सपोर्ट रहा. माई वाइफ वॉज वर्किंग, सो देयर वॉज सपोर्ट. और मैं डेट फ्री हो गया जब वापस आया. और माई वाइफ हैड अ सिक्योर जॉब. मैंने कहा कि अगर रिस्क लेना है तो यही टाइम है. यही time है. 35 से 40 उस वक्त मैं मे बी 36-37 होऊंगा. क्योंकि जो 2022 में मैं करना चाह रहा था, क्या मुझे ऐसा लगा कि 40 क्रॉस करने के बाद मैं रिस्क, आई विल नॉट बी एबल टू टेक दैट रिस्क. सो परहैप्स दिस इज द राइट टाइम. कुछ नहीं होगा तो बैंक का करियर तो है ही, थोड़ा ऊपर नीचे करके आई विल जॉइन एनी फॉरेन बैंक. रिस्क लिया, Yeah, no, चल no. गया. Absolutely, banking's loss. And what was harder आपके लिए? ये एक stable industry job को छोड़ के walking away from that, or earning credibility in the entirely new space which you have now as one of India's leading election analysts? What was difficult? उसको छोड़ना डिफिकल्ट था, बट एक तरह से मैंने प्लान किया था ये Yeah. लाइफ. इट वाज जस्ट दैट इट हैपेंड perhaps 5 years earlier than what I would have really wanted it to do. 2024 and 19. हाँ, ताकि मेरे पास थोड़ा और एक बैंक बैलेंस हो जाता तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर होता. अर्निंग क्रेडिबिलिटी इन द इंडस्ट्री इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टुडे इन दिस एज ऑफ सोशल मीडिया. देयर इज कांस्टेंट प्रेशर. आजकल आप कुछ भी बोलें, आप एक ट्वीट करें तो लोग आपको Troll कर देते कांग्रेस, लेबल कर देंगे. हाँ, कांग्रेस वाला लेबल कर देंगे. अगले दिन आप कुछ और ट्वीट करेंगे, आपको कोई किसी और पार्टी का, भाजपा वाला लेबल कर देगा. परसों आप कुछ और करेंगे, आपको न्यूट्रल कर देगा. तरसों आपको एंटी नेशनलिस्ट कर देगा. सो दिस सोशल मीडिया हैज एक्चुअली डेमोक्रेटाइज्ड द एंटायर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्पेस. डेमोक्रेटाइज बिकॉज नाउ एवरीबॉडी हैज अ से. Yeah. आज से 20 साल पहले आपको प्रधानमंत्री को कुछ बात कहनी होती तो आप क्या करते? कोई चॉइस नहीं था. चिट्ठी लिखते. चिट्ठी लिखते आप. चिट्ठी पोस्ट कर दी, मिली नहीं मिली पता नहीं, करेक्ट. पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं. करेक्ट. आज आपको सिर्फ ट्वीट में टैग कर देना है. टैग कर देना. हो सकता है वो ना पढ़े, टीम पढ़ रही है और मीडिया देख रहा है. बिल्कुल सही बात. अगर कुछ सिग्निफिकेंट आपने लिख दिया है तो वो मीडिया के अटेंशन में आ जाता है या लोगों के अटेंशन में आ जाता है. चर्चा शुरू. इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड, इट हैज मेड पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल. Does it? अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है. ठीक बढ़ी है, है. अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है मेरे हिसाब से. तो एनीवेज, तो क्रेडिबिलिटी गेन करना इतना इजी नहीं है इस लाइन में. बट अगर आप, मैंने एक जो नीश पकड़ा है वो है आई स्पीक ऑन डेटा. वट एवर आई से आई बैक इट अप बाई डेटा. सो डेटा इज डेटा. राइट. तो उसकी वजह से इन पिछले 5-6 सालों में एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हुई है. Is it fair to say that Amitav Tiwari today is India's most credible name in election analysis? एक क्रेडिबिलिटी मैंने एस्टैब्लिश करी वो है मुझे अपने दिखता लिए. है जब आप और आप लोगों में भी या मीडिया में या पॉलिटिकल पार्टीज या लीडरशिप में ऐसा है कि ये न्यूट्रल बंदा है जो डेटा बैक्ड बात है उसी बात को रखता है, किसी के फेवर या अगेंस्ट में या किसी पार्टी या बाकी लोग न्यूट्रल नहीं. आपने न्यूट्रलिटी की बात की. बैटिंग नहीं करता. आपने दूसरी बात है neutrality कि की जब हम न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग न्यूट्रल नहीं है. सबकी अपनी अपनी एक पोजीशनिंग है और क्रेडिबिलिटी है, और दैट इज फॉर द पीपल To टू डिसाइड. Yeah. ठीक है. अल्टीमेटली बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं या एक दूसरे पार्टी की बात कर रहे हैं, बट दैट इज फॉर द पब्लिक टू जज. पब्लिक ने एक ब्रांडिंग सबकी कर दी है कि ये कांग्रेस वाला है, ये बीजेपी वाला है, या ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल लोग कम हैं. न्यूट्रल लोग आज की डेट में कम हैं जो डेटा या किसी पे बात करते हैं. डेटा पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? रेटोरिकल. आज क्या है, जब मैं अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था पहले, इवन इन जर्नलिज्म लेट्स से, आप एक ओपिनियन लिख रहे थे और अगर वो गलत हो जाए, जैसे कि मान लिया मैंने 10 साल पहले एज अ जर्नलिस्ट आई राइट अ पीस
this particular party is winning based on whatever, Correct. or that party is not successful in winning that election. आपको रियलाइज हुआ आज कि नहीं है, आप पेपर ढूंढने जाएंगे, मिलेगा ही नहीं उस दिन का पेपर आपको. Yeah. देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन Correct. दैट सेंस. आप उस बंदे को अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर सकते क्योंकि वो अखबार आपको मिलेगा ही नहीं उस दिन का. आज सोशल मीडिया पे आपने 10 साल पहले भी कुछ लिखा हो, पब्लिक उसको निकाल करके ला करके सही बात. सामने रख देती है. तो सोशल मीडिया हैज आल्सो इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी For the media. फॉर द मीडिया. Yeah. करेक्ट. सो दैट इज अ बिग डिफरेंस विच हैज हैपेंड. तो आज हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल है. 4 साल 5 साल 10 साल बाद भी कोई उसको उठा करके पोस्ट कर देता है कि आज आपने कल आपने ये कहा था और ये सही नहीं है. देखें, क्योंकि अगेन देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स. एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट टुडे Yeah. on social media. Everybody is an expert on everything. Correct. And everybody is a journalist today. Everybody got a voice. मोबाइल के थ्रू आप पूरी दुनिया को बता दो. और YouTube की पॉपुलैरिटी की वजह से आज जिसके पास भी फोन है वो जर्नलिस्ट है. So there are no entry barriers actually. Anybody can be a journalist without studying journalism. मुझे इससे एक सवाल आ रहा है जहन में अमिताभ. You know, प्रणव राय जब आए थे मेरे ख्याल से अर्ली 80s में, that was the first time when we got a taste of psephology science, right? उसके बाद और भी लोग आए, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहा है over time. आज आप हैं, आप psychology भी करते हैं, election analysis भी करते हैं, predictions नहीं करते हैं आप. What has changed? कैसा evolve हुआ है पिछले 20, 25, 30 सालों में, ये हम आपसे सुनना चाहेंगे अपने viewers के लिए. The whole psephology part. I think पहले largely 2 parties के बीच में contest था. Congress and BJP at the national level and Congress versus some other regional party at the state level. उतनी complexity नहीं थी in terms of voting behavior and also in terms of the rise of the regional parties या others. तो पहले it was a 2-horse race largely in various states. तो अगर आपने एक representative sample, क्योंकि आप सेफोलॉजी में करते क्या हैं, आप एक सैंपल क्रिएट करते हैं, उन लोगों से डिस्कस करते हैं, पूछते हैं अपने सवाल कि उनके विचार क्या हैं, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इश्यूज, पॉलिसीज, हु आर दे वोटिंग फॉर. एंड इन अर्लियर पीरियड्स आप एक वोट शेयर से सीट शेयर में कन्वर्जन करते हैं. यानी देयर इज अ हिस्टोरिकल वोट शेयर टू सीट शेयर रेशियो. यानी अगर किसी पार्टी को 40% वोट है पिछले 10 इलेक्शन में, उसको 200 सीट्स मिला है, which means the vote share to seat share ratio is 5 for a particular party. Seats divided by vote share. तो आप एक historical vote share to seat share के बेसिस पर सीट्स प्रेडिक्ट करते थे और वो जनरली मोटा-मोटी accurate हो जाता था. अब 2004 के इलेक्शन में when everybody was thinking कि NDA is going to win, actually NDA lost. The India Shining campaign which failed. तो पहले टॉप डाउन एक्सरसाइज था. हमने एक नेशनल लेवल का वोट शेयर निकाला, उससे एक सीट्स का कैलकुलेशन किया. आज की डेट में बॉटम अप है. विदाउट प्रेडिक्टिंग ईच एंड एवरी सीट यू कैनॉट प्रेडिक्ट द ओवरऑल नेशनल और स्टेट लेवल पिक्चर. सो इट हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन. तो आज अगर प्रोजेक्शन होता है, तो अगर मान लेते हैं बिहार का प्रोजेक्शन करना है किसी को, जो ठीक से करना है किसी को, तो उसको हर सीट का प्रोजेक्शन करना होगा और एंड में करना होगा कि भाई 230 सीटों में से ये पार्टी इतनी सीट जीत रही है और ये इतनी. सो इट हैज चेंज इन दैट एस्पेक्ट. फ्रॉम टॉप डाउन इट हैज बिकम नाउ अ बॉटम अप एक्सरसाइज. वोटर बिहेवियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. जैसे आप पोल कर रहे हैं तो आपने किसी से बात की, उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब ही आपका इनपुट है, उसमें कुछ बदलाव आया है ओवर द इयर्स ना. वोटर परसेंटेज ऑब्वियसली टर्नआउट बहुत बढ़ गया है. हैज द वोटर बिकम स्मार्टर vis-a-vis दीज पोल्स? या सो वोटर नाउ सी क्या होता है, जो आदमी अब लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है भारत. पोस्ट कोविड इनइक्वालिटी बढ़ी है. पोस्ट कोविड इनइक्वालिटी बढ़ी है. द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग. इट्स अ ग्लोबल phenomenon. It's not only an India phenomenon. Correct. So poor people are dependent upon the government for their
livelihood, for their ration, for their schools, I mean education, health, etc. Yeah. तो जब आप किसी गरीब व्यक्ति से जो बेनिफिशियरी है किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे वोटिंग इंटेंशन पूछ रहे हैं, तो वो डरता है अच्छा. कि अगर मैं बोलूं कि मैं विपक्ष को वोट दूंगा तो इनके पास तो मेरा पता भी है, मेरा नाम भी है, मेरा फोन नंबर भी है, मेरा नाम उस बेनिफिशियरी लिस्ट से काट दिया जाएगा. सो दैट हैज मेड टास्क more challenging for psephologists, pollster. because the basic assumption of psephology is that people are speaking the truth. Yeah, correct. अब मैंने 1000 लोगों से बात करी और उसमें 500 लोगों ने झूठ बोला, तो मेरा तो सारा प्रोजेक्शन ही गलत हो जाएगा. सही बात है. तो ये एक पिछले 10 सालों में ये एक फैक्टर जो है वो वोटर के माइंड में प्ले कर रहा है. इसमें कैसे एक्यूरेसी अचीव करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैं जानना चाहूंगा, कैसे आप अचीव करते हैं? अब इसमें एक्यूरेसी अचीव करने की ये बात है कि आज की डेट में कुछ भी क्वांटिटेटिव सिर्फ नहीं रह गया है, विच मीन्स दैट द प्रोजेक्शन इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन डेटा. डेटा से मुझे एक नंबर आ गया विच इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, बट वी ऑल्सो डू क्वालिटेटिव चेक्स, विच इज स्पीकिंग टू पॉलिटिकल लीडर्स, influencers, समाज सेवी, media, strangers about a particular seat, and then we try to arrive at a consensus कि मेरा quantitative data ये कह रहा है कि इस particular seat से ये पार्टी जीत रही है, मेरा qualitative assessment कह रहा है कि Y पार्टी जीत रही है. अगर दोनों में difference है, then I go back to the drawing board and do this again, until unless I achieve a consensus. Does it not that then mean that it's become more difficult now? It has become more difficult. That's why people are getting it wrong. Yeah. अगर आप देखें MP 2023, everybody thought, most of the people thought that Congress is going to win. The BJP won a landslide. 2024, everybody said BJP will get 350, 400 or other NDA. The BJP fell below 272. It could not even cross 300. Everybody said Maharashtra Mahavikas Agadi is ahead, or rather most of the people said. Most of the people said Haryana Congress sure shot hai. हुआ क्या? उल्टा. No, Bihar recently. You know, politics has always fascinated me as it has, millions of people in India. Political communication मुझे बड़ा fascinate करता है. मैं पॉलिटिशियंस को सबसे बढ़िया कम्युनिकेटर मानता हूँ. यू नो, यू हैव सीन दिस फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. आप चैनल्स में उनके साथ बैठते हैं. हाउ हैज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इवॉल्व, चेंज्ड ओवर द इयर्स? देखिए, इन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स लार्जली. वन इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन पॉलिटिशियंस एज इंडिविजुअल लीडर्स. अब जब भी हम किसी इंडिविजुअल लीडर से बात करते हैं, सो व्हाट वी ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन देम इज दैट this is a very very long career. क्योंकि एक तो रिटायरमेंट एज पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, 75 ईयर इज नॉर्मल. दूसरा, उसके बाद उनके बेटे बेटी का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, तो एक भी मिसस्टेप आपका पूरा ये करियर खत्म कर सकता है. दैट इज व्हाई दे नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड रिसोर्सेज इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी, इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट, हायर द सर्विसेज ऑफ अ स्ट्रैटेजिस्ट. जिसके पास ये विजन है, उसके पास टीम है, और आज वो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं. जैसे मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स इन 2007 आफ्टर ही वन हिज सेकेंड टर्म इन गुजरात. 2007 ही हैड अ विजन कि भाई 14 में या उसके अराउंड मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं. अब अगर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करें, so political communication is largely 3 objectives it has. First is to influence public opinion. Second is to shape public discourse, build narratives. Third is to garner support for policies, programs, ideologies, candidates. यही 3 objective हैं largely political communication के. अब this has also evolved over the years. अब जैसे 1950s में, अब 1950s में तो मास मोबिलाइजेशन के ऊपर जोर था, और ट्रेडिशनल मीडिया विच इज रेडियो एंड प्रिंट वाज यूज्ड.
So big public rallies and radio and print advertisements. That was Largely two mediums of communication. इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू रेडियो बहुत यूज करते थे. अब इंदिरा गांधी also understood in that era the importance of catchy slogans. So complex ideas को कैसे कैची स्लोगन में कन्वर्ट करना है. गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, जो मैं आज बोलने वाला तो आपने ऑलरेडी बोल दिया. So the first slogan, political slogan, काम अधिक बातें कम. first political slogan we ever remember, top of the mind recall is गरीबी हटाओ. 1971 में उन्होंने ये दिया. अब 1990s में आपको टेलीविजन की एंट्री होती है. करेक्ट. Late 80s, 90s. So TV ads, commercials also become part of this political communication. TVs पे campaigns, leaders आने लगे, अपनी बात रखने लगे, debate शुरू हो गए. Different spokespersons of different political parties pitching their opinions, their policies, programs, manifesto ideas. अब जब से social media, ना this social media change or this technological advancement, the proliferation of social media platforms, Facebook, X, Insta, YouTube, इसने पूरा revolutionize कर दिया है the way political communication is handled. 2014 में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे इंडिया में, आज 100 करोड़ हैं. 100 करोड़. 55% in rural areas. 47% of these users are women. So it's also gender neutral in that sense. 2014 के आसपास 0.27 GB पर यूजर हमारा यूज था इंटरनेट का, वो आज 20 to 25 GB. So everybody is on this Scrolling. All brands are on this platform. They have to be on this platform. Including political brands. Including political brands, leaders, political parties. Now 2014 is the first social media election of India. 2019, the first WhatsApp election of India, and 2024 was the first YouTube election of India. Explain करिए उसको. हाँ, तो 2014 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बीजेपी का डोमिनेंस था. राहुल गांधी joined Twitter in 2015. He joined Facebook in 2017. नरेंद्र मोदी joined Twitter in 2009. So 2014 के चुनाव में बीजेपी को एक फ्री फील्ड था. सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपोजिशन के पास था ही नहीं. अब 2014 से 19 के बीच में ऑल द अदर लीडर्स, तो राहुल गांधी भी आ गए ट्विटर पे, फेसबुक पे आए, ऑल ऑफ देम स्ट्रेंथेंड देयर सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर. उस पर इन्वेस्ट किया टाइम, रिसोर्सेज, क्योंकि अल्टीमेटली कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है. बट इस दौरान 2009 and 2014. 2014 and 19, Okay. 14 was the first मोदी इलेक्शन, फर्स्ट सोशल मीडिया. उस समय पे 3 करोड़ व्हाट्सएप यूजर थे, 2 करोड़ ट्विटर पे, फेसबुक पे 10 और यूट्यूब पे 12 करोड़. अब 2019 में when the opposition was ready on social media to take on BJP, and everybody and many people had this feeling that opposition और बीजेपी में 19-20 का ही फर्क है सोशल मीडिया पे उस टाइम पर. बीजेपी साइलेंटली मूव टू व्हाट्सएप. ना व्हाट्सएप जो 3 करोड़ यूजर थे 2014 में, वो 2019 में 39 करोड़ हो गए. ट्विटर वहीं का वहीं 2 से 2, इंस्टाग्राम प्रॉब्ली 3 to 12, एंड फेसबुक और यूट्यूब भी एक नॉर्मल उनमें इंक्रीज हुआ. तो बीजेपी ने जितने भी बूथ्स हैं भारत में, उस हर बूथ में 3 व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए. उनका क्लेम है ऐसा. तभी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो एक नेशनलिज्म का फर्वर जो जनरेट हुआ, वो लार्जली व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हुआ, जिसपे अगेन उनको कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे दूसरी पार्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं. दे वेर ऑन एक्स और फेसबुक और इंस्टा उस वक्त उतना पॉपुलर नहीं था. अब 2019 में बेनिफिट करता है फिर से बीजेपी को दिस व्हाट्सएप, बिकॉज दे मेड दिस शिफ्ट. नाउ 2019 to 24 this WhatsApp users became 53 crore.
सो 3 करोड़ 2014 में था, 53 करोड़ हो गई। तो 339.53. 339.53, so 14 times in 10 years the number of WhatsApp users. बीजेपी को लगा कि WhatsApp जो है वो एक पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, एक प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। Nobody would know what you and I are exchanging information on. तो उनको लगा कि ये डोमिनेंस जो है उनकी हेल्प करेगी उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन एक नंबर उन्होंने मिस कर दिया इस टाइम पे। YouTube users grew from 12 crore to 46 crore during this period. और 2024 आते आते एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइस का एक प्लेटफॉर्म हो गया YouTube। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे लोग। सो ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट, टेलीविजन was being seen as pliant to government. तो एक जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइस था उसको एक मीडियम चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बहुत सारे पत्रकार भी उसमें बहुत थे। सारे पत्रकार छोड़ करके निकले, बहुत सारे लोग निकले, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया YouTube ने। और YouTube पे बीजेपी या राइट विंग चैनल्स जो पॉपुलर हैं आपको बहुत कम मिलेंगे। सो बीजेपी रियलाइज दिस वेरी लेट इन द गेम। It was an oversight. इट वॉज एन ओवरसाइट। सो जैसे बीजेपी को फ्री फील्ड मिला सोशल मीडिया पे 2014 में, व्हाट्सएप 2019 में, 2024 में ऑपोजिशन को फ्री फील्ड यूट्यूब पे था। लेकिन रिजल्ट ऐसा ट्रांसलेट हुआ क्या ये? एक तरह से हुआ क्योंकि जो 400 पार था वो 300 भी नहीं आया। और आप एक तरह से समझिए जो कांग्रेस पार्टी जिसका संगठन था ही नहीं, संगठन इतना कमजोर था, उसका जो नैरेटिव था संविधान खतरे में, वो लोगों तक कैसे पहुंचा? वो ये यूट्यूबर्स के जरिए पहुंचा। तो बीजेपी रियलाइज दिस वेरी लेट इन द गेम एंड दे स्टार्टेड दिस नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, इफ यू रिकॉल, इन 2000 December 2023. As late as 23. As late as December 23 when elections were due in April. इस गेम को बीजेपी नहीं पकड़ पाई, विपक्ष कमजोर था, लेकिन विपक्ष की आवाज यूट्यूबर्स ने, लोकल, हाइपर लोकल, हर विधानसभा लोकसभा में इतने सारे चैनल्स हैं, उन लोगों ने अपनी विपक्ष की बात जो है वो लोगों तक पहुंचाई और बीजेपी 400 प्लस से 300 से नीचे पहुंच गई। बीजेपी की खुद की मैच्योरिटी नहीं मिली। एक यही कारण है आपके? लार्जली एक ये कारण है, ओवर कॉन्फिडेंस एटसेट्रा। आगे कैसा चलेगा ये? व्हाट इज, हाउ डू यू सी दिस इवॉल्विंग? लेट्स से अगले जो इलेक्शंस होंगे, सोशल मीडिया का पूरा कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है उसका, अब कौन सा प्लेटफॉर्म चलेगा उस चुनाव में ये अभी कहना मेरे लिए मुश्किल है। इंस्टाग्राम भी काफी पॉपुलर है, यूथ में तो काफी ही पॉपुलर है, बट इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज या इंडिविजुअल्स के लिए, जहां तक मुझे समझ है, इंस्टीट्यूशंस के लिए उतना नहीं है। वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें लोग चलते हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, गाड़ी से कैसे, वो चलेगा। सो लीडर्स चलते हैं वहां पे। पॉलिटिकल पार्टीज का उतना इन्फ्लुएंस इंस्टाग्राम पे। हमने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को भी देखा है अभी। लीडर्स हैं, हाँ। लीडर्स तो बहुत हैं, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज एज एन इंस्टीट्यूशन वो नहीं, वहां पे इंडिविजुअल्स चलते हैं, सेलिब्रिटीज। लीडर्स भी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जबरदस्त चलता है इंस्टाग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीडर्स तो चलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है। एक्स अभी भी 3 करोड़ पे है, 2 से 3 करोड़ पहुंचा है एक्टिव यूजर्स। लॉस्ट इट्स प्लॉट, राइट? बट वो एजेंडा सेट करता है मीडिया में, तो वो मीडिया के लिए है लार्ज। अच्छा। वो मीडिया में अपना एजेंडा सेट करने के लिए है या अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइज किया है, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे। वो एक इंस्टेंट मीडियम है। इमीडिएसी एंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दैट मीडियम इज व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल। तो उसमें आप बहुत लेट रिएक्शन नहीं कर सकते। सो अगेन, जैसा हमने सेफोलॉजी में डिस्कस किया कि टॉप डाउन से बॉटम अप अब प्रोसेस हो गया है, उसी तरह से इवन इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन what has happened is that this immediacy or spontaneity has made political leaders parties accountable, और जो एक फीडबैक लेने का सिस्टम है वो बॉटम अप हो रहा है। अब आप देखेंगे बहुत सारी पार्टीज अपना मैनिफेस्टो बनाने के लिए ग्राउंड से फीडबैक ले रही हैं थ्रू दिस मीडियम्स,
एम्प्लॉय करके फीडबैक लेती हैं। तो ये सोशल मीडिया ने एक तरह से आप कह सकते हैं बैरियर्स जो थे बिटवीन लीडर्स एंड पीपल, लीडर्स एंड वोटर्स, उसको रिमूव किया, एलिमिनेट किया है। Eliminate अब किया। सब लोग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और आप बहुत लेट रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत लेट, आपके पास टाइम नहीं है रिएक्ट करने के लिए। इफ somebody has tagged you, has put up some issue or raised some issue, you need to respond immediately, instantly. वही उस मीडियम का एडवांटेज है और डिसएडवांटेज। इस नए कॉन्टेक्स्ट में अमिताभ, जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्समैन हैं, जो टीवी पे पर्सन्स हैं, जो टीवी पे दिखते हैं, उनका क्या रोल कैसे चेंज हुआ है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नाउ दे हैव एक्सेस डायरेक्टली टू द वोटर। यू नो, अगर आप व्हाट्सएप पकड़ेंगे तो मोबाइल के थ्रू मेरा 1-on-1 एक्सेस है। उनका रोल क्या है, मुझे जरा समझने में हेल्प करिए। रोल कम होता जा रहा है। नैरेटिव बिल्डिंग में भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स जो ट्रेडिशनल टेलीविजन चैनल्स पे आकर के अपनी बात रख रहे हैं, आई थिंक दे आर नॉट सक्सेसफुल इन बिल्डिंग नैरेटिव्स। Isn't that by design? सेंट्रली आपने कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर बनाया, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई और सबको रोल्स असाइन किए कि भाई पॉलिटिकल जो हमारी पार्टी का स्पोक्स पर्सन होगा वो ये काम करेगा टेलीविजन पे। उनका काम मुझे बड़ा लिमिटेड लगता है, मुझे जो समझ आता है, और हो गया है लिमिटेड, और भी है ना? सोशल मीडिया के ज़माने में और भी लिमिटेड हो गया है, बिकॉज दे आर नॉट, एज आई सेड, कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिव है टू शेप पब्लिक और इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, शेप द पब्लिक डिस्कोर्स। टेलीविजन चैनल में आधे घंटे 1 घंटे के डिबेट में अब आज खास करके आज जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है विच इज लार्जली रेटोरिकल, तू मैं, बिल्कुल। तो क्वालिटी ऑफ डिबेट जो है वो उस स्तर का नहीं है जो वोटर को एंगेज रखे या वोटर को इन्फ्लुएंस करे उसका ओपिनियन, या कोई आप पार्टी के द्वारा कोई नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं, आपके स्पोक्स पर्सन्स टेलीविजन चैनल्स पर आकर के उस बात को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया इज लार्जली नाउ फॉर बिल्डिंग नैरेटिव्स। स्पोक्स पीपल का जो प्रोफाइल है, मैंने नोटिस किया कि कोई बहुत सीनियर नेता उसमें नहीं आते हैं। व्हाट इज दिस रिजल्ट ऑफ? ये स्ट्रैटेजी हमारी अलग हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, कि टीवी डिबेट्स का नेचर ऐसा बदल गया है कि कोई सीनियर नेता वहां जाके बैठ नहीं सकता है? अब इस पे क्रिकेट का एनालॉजी मुझे ध्यान आता है। अच्छा, अगर आप देखें तो T20 के पॉपुलैरिटी के बाद T20 में जो अच्छा करता है प्लेयर, वो वनडे टीम और टेस्ट टीम में उसकी जगह बन रही है। पहले उल्टा था, जब T20 शुरू हुआ था तो राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सहवाग, तेंदुलकर, who were टेस्ट मैचेस का stalwarts, they also did well in T20. So it was top to bottom again. अभी T20 में अगर आपने अच्छा किया है तो आपको वनडे टीम में जगह मिलती है और आपको टेस्ट टीम में भी मिल सकती है। तो अब जो प्रोफाइल है स्पोक्स पर्सन्स का, दे आर ऑल्सो बीइंग पिक्ड अप फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर किसी पार्टी का जो वर्कर है, लीडर है, वो काफी पॉपुलर है और अपनी बात बहुत मजबूती से रखता है सोशल मीडिया पर, अब वो धीरे धीरे पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के पार्टी का फेस बन रहा है टेलीविजन चैनल पे। तो जो एक पहले अरुण जेटली, बड़े बड़े अरुण जेटली, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल, रविशंकर प्रसाद, इस टाइप के जो डिबेट्स होते थे, वो अब नहीं देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। कंटेंट जो है इन लोगों के पास उतना सॉलिड नहीं है। जो उनका कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे चलने वाला कंटेंट है। अब एक ही तरह का कंटेंट तीनों जगह पे नहीं चलेगा, तो वी आर अज्यूमिंग कि जो कंटेंट सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई इंडिविजुअल का कंटेंट, वो जब टीवी पे जाएगा तो भी वो चलेगा नहीं, बिकॉज टीवी इज अ डिफरेंट मीडियम ऑल टुगेदर। इट्स अ सीरियस मीडियम, यू हैव टू हैव सीरियस पीपल पुटिंग देयर व्यू पॉइंट विथ फैक्ट्स एंड डेटा। सोशल मीडिया पे तो चल जाएगा कुछ भी। Who's अमिताभ तिवारी? जब कैमराज ऑफ हैं, आप इलेक्शन सीजन नहीं है, Who's अमिताभ तिवारी? इलेक्शन सीजन नहीं है तो भी, क्योंकि अब दो स्टार्टअप्स हमने 2025 में शुरू किया है। एक है वोट वाइब, विच इज़ लार्जली एन ओपिनियन एंड एग्जिट पोल कंपनी, क्योंकि हमें एक वैक्यूम दिखता है
इस इंडस्ट्री में 2024 में अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। Yeah. 2004 में लोगों का गलत हुआ Hmm. और 20 साल की मेहनत जो थी इस इंडस्ट्री की वो एक तरह से धूमिल हो गई, क्योंकि 2024 में भी लोगों का अनुमान गलत हुआ इन टर्म्स ऑफ सीट्स। सो आई सी अ वैक्यूम देयर दैट यू नीड सम न्यू कंपनी विथ न्यू विजन, न्यू मेथडोलॉजी, न्यू वेज ऑफ क्रैकिंग थिंग्स। तो हमने वोट वाइब शुरू किया है, अभी 7-8 महीने हो गए, अपना अभी सक्सेस रेट अभी भी 100% आपने है। न्यू मेथोडोलॉजी की बात की, क्या नया करते हैं, कैसे नया करते हैं इसमें आप? इसमें लार्जली हम लोग जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अलावा जो है इसमें एआई मॉडल्स भी यूज कर रहे हैं टू डिटरमिन वेदर देयर आर इनकंसिस्टेंसीज इन डेटा। जो हम इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। करें, जो हम बात कर रहे थे हाँ। कि वोटर सच बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो वो भी एक पैटर्न से आप डिस्कर्न कर सकते हैं एंड देन यू स्टार्ट eliminating that data. You're getting AI to read the facial expression? How is it? It is largely, currently it is, we are testing it, it is largely from the responses. Okay. Largely from responses. Okay. The inconsistency in the responses, और हम AI यूज कर रहे हैं अपने डेटा को एनालाइज करने में, और रिपोर्ट्स वगैरह हमारे जो हैं ज़्यादा एक्यूरेट करने में काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 6 to 8 months ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल से लेके रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, हर जगह हमारे सर्वेज क्या बात है। गए हैं। और इजीली अगर आप चैट जीपीटी या कोई एआई प्लेटफॉर्म पे अगर आप टॉप 5 ब्रांड्स या इमर्जिंग ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ सेफोलॉजी अगर पता कर चेक करेंगे तो वोट वाइब का नाम उसमें आएगा। तो अब क्योंकि नई कंपनी है, यू नो, समय देना यू है। आर हैव आल्सो स्टार्टेड एंड Correct. entrepreneurship journey, which is very challenging. So largely business development, pitching to clients, getting projects, then getting payment. It's not easy. Political client से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है, गवर्नमेंट से, political client से। तो उसमें largely क्योंकि हमारा जो विजन एम्बिशन है वो वोट वाइब को टॉप 3 ब्रांड बनाने का है 2029 लोकसभा तक, और गॉड विलिंग उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और एसेंडिया स्ट्रैटेजीज करके एक पॉलिटिकल consulting arm है। So Vote Vibe largely caters to media as clients, and Ascendia Strategies largely caters to politicians and political Parties. leaders as and political parties as And what do you clients. do? So ये एक You distinction. advise them and the 360 degree election campaign management, which is advisory, strategy, data, social digital media, something campaigns. similar to what Prashant Kishore ji No, used to do something earlier? similar largely, because I have also been doing this for last 7-8 years. Each year, हर साल एक दो स्टेट्स हम करते हैं। 10 स्टेट में 10 स्टेट से ऊपर हमने काम किया हुआ है, और 5+ चीफ मिनिस्टर्स और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी काम हमने किया हुआ है। इट्स जस्ट दैट वी ऑपरेट अंडर द रडार, बिलो द रडार, डू नॉट। सबसे मजा आपको किस पॉलिटिशियन के साथ काम करने में लगा? एक दो नाम बताए अगर बता पाए आप। ममता दीदी के साथ काम किया? नहीं, उनके साथ नहीं किया। सबसे शार्प पॉलिटिशियन अगर आप कहेंगे मुझे, सबसे शार्प जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, is clearly Chandrababu Naidu. Amazing memory and instincts. Amazing. जब वो मीटिंग्स करते हैं तो जैसे किसी भी सीएम के साथ आप मीटिंग करेंगे तो 2-4 लोग रहेंगे जो बैठ के नोट्स बना रहे हैं, वो खुद नोट्स बनाते हैं। There is nobody in the room except for him and his son. And if he likes somebody, he will pull his mob law pen and make those notes. Amazing. जो उनका एक विजन और ये है, और बहुत शार्प एनालिटिकल माइंड है। और मज़ेदार, आपने पूछा ना, मज़ेदार पूछा, मज़ेदार मज़ेदार एक राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं रघु शर्मा करके। ही वॉज इन चार्ज ऑफ कांग्रेस कैंपेन इन गुजरात in 2022. So was again very sharp guy, but a foodie. So whenever you go to his place, It's all about food. it's food, and he will also have, और आप भी मतलब खाना खा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उस पर ही डिस्कशन करते थे। तो जब हम लोग कैंडिडेट्स रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेट्स वाज वन ऑफ द टास्क्स। आपके रिकमेंडेशन को सीरियसली लेते हैं लोग? वही कह रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेट्स, वी यूज्ड टू गिव देम नेम्स एटसेट्रा। ही सेड, ये सब छोड़ो भाई, मुझे तो ऐसा कैंडिडेट लेके आओ जो कल को भाजपा ना ज्वाइन करे।
गुजरात में हिस्ट्री है, कांग्रेस 70-80 सीट जीतती है, 40 चले जाते हैं 5 साल में भाजपा में। बोला कि ये सब लिस्ट छोड़ो, मुझे तो ऐसा बंदा ढूंढ के, हमने कहा ये कैसे ढूंढे सर? करेक्ट। एंड ऑल्सो पीपल आर वेरी लोनली एट द टॉप, वेरी लोनली। अब एक सीएम का मैं नाम नहीं लूंगा, एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ एक स्टेट में जिसमें फार्मर्स की डेथ हो गई। वेरी इमोशनल पर्सन दैट चीफ मिनिस्टर, ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ। वी वर सिटिंग डिस्कसिंग फॉर द compensation. The initial compensation agreed upon was 5 lakh rupees. So ठीक है भाई, जो भी डिस्कस हुआ, I instructed my social media guys to post on Twitter. Twitter था उस वक्त 5 lakhs. So they posted, हर जगह चैनल्स पे वहाँ चल गए. He comes to the press conference. He says 10 lakh rupees. चैनल्स पे चल चुका है 5 लाख. हमने ट्वीट किया हुआ है 5 लाख, बोल दिया उन्होंने, ठीक है। एवरीथिंग इज टेकन बैक, 10 लाख, ठीक है। अब उस वक्त रात में हम लोग घर पहुंच गए, 9:30 बजे उनके यहाँ से फ़ोन आ रहा है, सीएम वांट्स टू मीट यू। और टाइम, ठीक है, पहुँचे, 4-5 कॉल आ गए, कहाँ है भाई, पहुँचे। ही सेज 10 लाख कम, तुमको क्या लगता? तो काफी इमोशनल, नोबडी इज इन दैट, कोई एडवाइजर नहीं, इतने आईएएस ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई नहीं। और मेरा भी पहला ही असाइनमेंट सॉर्ट ऑफ, मैं भी नया ही एक तरह से उस फील्ड में, 2017-18 की बात बता रहा हूँ। ही सेज कि जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई बड़ा मेडल जीत के आता है कहीं से, या कोई शहीद होता है, कितना देते हैं? कितना देते हैं? आई सेड सर 25-50, 1 करोड़, विशेष 1 करोड़, ऐसे बता, 1 करोड़, कॉल पीपल, एएनआई को बुलाओ। मैंने कहा सर आपने 5 से 10 से 1, इट विल नॉट लुक गुड। आफ्टर थॉट जैसा लगेगा। हाँ, मतलब इट विल लुक कि हम पैनिक कर रहे हैं। He says okay, what do you suggest? Then we reached at a figure 50. ANI वाला बाहर ही था, बुलाया 50. So within a span of 6 hours, the compensation went up to 10 times. And that crucial decision, which is going to impact the elections, is just between him and me. इलेक्शन कितने दूर था? 2018 में इलेक्शन था, मतलब 6 महीने बाद था इलेक्शन। They are also humans. आपने बात की अमिताभ की, आप चीफ मिनिस्टर, यू नो, यू आर वेरी क्लोज टू सम ऑफ दीज पीपल, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। आपका मंत्र क्या है? हाउ डू यू इंश्योर दैट यू नो पीपल ट्रस्ट यू? क्रेडिबिलिटी तो आपकी है कि भाई आप डेटा के बगैर बात नहीं करते हैं। अब ट्रस्ट में ये है कि भाई आपको जिस काम के लिए रखा है उन्होंने, आपको वो काम करना है, यानी शुगर कोटिंग नहीं करनी। आपको एक काम के लिए रखा गया है, हमारा काम है जो सही नहीं हो रहा है वो उनको बताना। कुछ चीज़ें जो हम बताते हैं वो उनको ऑलरेडी पता है, जस्ट अ वैलिडेशन फॉर देम। सम थिंग्स वी ब्रिंग न्यू टू द टेबल, जो उनको नहीं पता है, या जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको जो पता है और हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क है। तो ही ऑल्सो गोज एंड चेक्स एंड वी विल ऑल्सो गो एंड चेक। सो ट्रस्ट जब बिल्ड होता है, जब आप अपनी बात को बिना किसी भय के, बिना शुगर कोटिंग किए जो बात है आप डायरेक्टली बता देते हैं टू द पॉइंट, बिकॉज दैट इज व्हाट यू हैव बीन हायर्ड फॉर। करेक्ट। इफ यू आर गिविंग हिम द सेम इंफॉर्मेशन which he already has or which he is getting from his coterie or leaders or workers, then you are not probably fulfilling your duty. कोटरीज चैलेंज नहीं होते? चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कोटरीज घुसने नहीं देते आपको किसी पॉलिटिकल लीडर के पास इतनी आसानी से। But ठीक है, this is like I mean occupational hazard like any other occupation. कुछ मंत्रास बताइए अमिताभ। नहीं, मंत्रास के मैं ज़्यादा बुक्स तो पढ़ता नहीं हूँ। एक है कि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, आई बिलीव। करेक्ट, फेलियर इंडिया में इज अ टैबू, बट फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। एक सक्सेसफुल जर्नी में
बहुत सारे फेलियर्स हैं, तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। फेलियर शुड नॉट बी सीन अपॉन एज समथिंग डाउन राइट कि भाई क्या फेल कर गया कोई बंदा। फेलियर को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी एक बात है कि लाइफ में जो चैलेंजेस तो आते ही हैं, आते रहेंगे, जब हमने डिस्कस किया पहले भी। सो लाइफ थ्रोज बाउंसर्स एट यू, अगेन इन क्रिकेट एनालॉजी। इफ यू आर इन गुड फॉर्म, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप उसको 6 मार दें। बट इफ यू आर नॉट इन गुड फॉर्म, जस्ट डक। सचिन तेंदुलकर भी 6 बाउंसर्स पे 6 छक्का नहीं मार सकते, तो आप और हम कैसे मार सकते हैं? तो अगर हमारे बस की नहीं है उस समय पे, या हमारा समय नहीं सही चल रहा है, या हम कॉन्फिडेंट नहीं है, वी नीड टू जस्ट डक। कोई भी बॉलर आपको 6 बाउंसर नहीं मार सकता। मान लेते मारता है, आप 6 बार डक कर गए, अगले ओवर में जब वो बॉल करने आएगा, ही विल हैव टू चेंज हिज लाइन एंड लेंथ बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग एनी बॉल। अरे आप उसका बॉल ही नहीं खेल रहे। तो लाइफ भी वही है, लाइफ भी परेशान होकर के आपको कुछ और चैलेंज देगी, फिर तब आप खेलना शुरू करिए, तब आप बाउंड्रीज लगाइए। हर एक बाउंसर को छक्का मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आउटर सर्कल में कैच हो सकते हैं, आप आउट हो जाएंगे। 2 ऑथर्स हैं, या एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो मेरे लाइफ में वो भी उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। व्हेन यू गेन यू लूज, व्हेन यू लूज यू गेन। अर्थात What did I lose when I shifted from, or when I pivoted from a career of banking to this field? I had a well-settled life, fat package. I lost that. correct. But what I gained a new experience. I gained a new avatar. Many people know me now who otherwise would have not known me if I would have stayed in banking. So there is always a balance. When you gain, you lose. When you lose, you gain. I lost a fat package and a salary, We gain something but I else. gained something else. Yeah. Something more perhaps enriching and fulfilling. तो इस मुहावरे का, इस एडेज का मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इसका इन्फ्लुएंस है। 2 ऑथर्स लार्जली मैं पढ़ता हूँ। एक हैं मॉर्गन हाउसेल, उनकी एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, और एक हैं रॉबिन शर्मा, जिनकी बहुत सारी किताबें हैं, बट 5 AM क्लब उनकी एक किताब है जो मुझे अच्छी लगी, मतलब इन्फ्लुएंस है उसका। ही सेज दैट इफ यू वांट टू बी इन द टॉप 5%, you have to do what the bottom 95% are not doing. Because these people accept failure. They change track. They are flexible. They experiment things. So top 5% में अगर आपको रहना है तो bottom 95% जो नहीं करता है वो आपको करना पड़ेगा। फिर वो एक बात कहते हैं कि whenever you fail or whenever you feel that you need to give up, you need to get going, because triumph favors the relentless. Yeah. मतलब आपको गिव अप नहीं करना है, फेल हुए, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, आप फिर से उठिए और मेहनत करते रहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखता है मॉर्गन हाउसेल, हालांकि वो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। वो कहते हैं कि लक और रिस्क ये 2 सिबलिंग्स हैं, ये सिबलिंग्स हैं, लक एंड रिस्क। व्हेनेवर जब वी आर सक्सेसफुल, हम कहते हैं ये हमारे एफर्ट की वजह से हुआ है, हम लक के बारे में चर्चा ही नहीं करते। लक का रोल है उस सक्सेस में, वॉट एवर परसेंटेज इट इज, 5, 10, 15, But we don't want to admit. बट वी डोंट वांट टू एडमिट। वी से कि ये सब मेरे इंडिविजुअल एफर्ट की वजह से हुआ है। और जैसे ही हम फेल होते हैं, Bad luck. बैड लक, रिस्क, उसमें हम सब कुछ ब्लेम कर देते हैं बैड लक के ऊपर, नॉट इंडिविजुअल एफर्ट। वो माइकल गेट्स की बात बताते हैं। माइकल गेट्स ऑफ कोर्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल। व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन maybe 1960s, in perhaps 1960s only, in his school days, उस समय यूएस में सिर्फ 3 स्कूल में कंप्यूटर था, जिसमें से एक स्कूल में माइकल गेट्स पढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग माइकल गेट्स बन गए।
लेकिन he was lucky enough to be in one of those 3 schools and he himself admits this thing in many of his interviews. तो luck Does play a role. और या लक और रिस्क का रोल है. जैसे ही आपने इसको एक्नॉलेज कर लिया, फिर आप समझ जाते हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट ही आपके हाथ में. इसका ये भी एक दूसरा पहलू है कि लक और रिस्क आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में इंडिविजुअल एफर्ट है. आपको इंडिविजुअल एफर्ट लगाना है और अगर आप मेहनत से करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलती है. कभी गिव अप करने की इच्छा हुई पिछले 8 साल में 2019 एंड नाउ? कभी लगा ऐसा कि साहब यू नो लेट मी गेट बैक टू बैंकिंग? एंड हुआ है, 1-2 बार ऐसा हुआ है कोविड के टाइम, क्योंकि कोविड के पीरियड में अगेन कंसल्टेंसी लार्जली वाज इम्पैक्टेड. तो हुआ है और एक टाइम पे मैं एक मीडिया हाउस भी ज्वाइन कर रहा था, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग अ मीडिया हाउस. बट अगेन व्हेन आई सेइंग नॉट शिफ्टिंग गोइंग बैक टू कॉर्पोरेट बैंकिंग बट लीविंग माय फ्रीलांस या एंटरप्रेन्योरियल थिंग टू गो बैक टू अ जॉब. बट I just stayed on course. somehow वो नहीं fructify हुआ. I stayed on course. So all's well that ends well. all's well that ends well. And with that, on that note, we have come to the end of the first part of the interaction. You know, I had a wonderful time with Amitabh. Now, as is the format, we take turns, and Amitabh wears the host's hat. And he is free to now ask me questions, and I'll be happy to answer. So अभी आप होस्ट हैं और आपको सवाल पूछना है मेरे से. डिफिकल्ट है ये. नहीं, क्योंकि मुझे आंसर देने की आदत है सिर्फ. तो ये एक गुगली है सॉर्ट ऑफ. बट आई मीन वी हैव नोन ईच अदर फॉर 20 years and we've kept in contact. और आप हमारे मेंटर हैं, तो और इस फील्ड में आपने महारत हासिल कर रखी है. तो how do you see reputation management in today's world relevant for any brand? देखिए, रेप्यूटेशन तो इंडिविजुअल लेवल पे है, कॉर्पोरेट लेवल पे है. जब मैं कॉर्पोरेट बोल रहा हूँ तो मैं मतलब इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ. पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ईच ऑफ दीज इज अ ब्रांड. और उन पे लोगों ने ये ब्रांड को, अब पर्सनल ब्रांडिंग तो अभी एक नया टर्म आ गया है, बट इवन पहले भी मैं पॉलिटिशियंस की बात करूंगा, इसलिए मुझे बड़ा फैसिनेट करता है इनका जब द वे द कम्युनिकेट, जैसे वो बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैनरिज्म्स एंड एवरीथिंग एल्स, इट्स लुक्स सो वेल थॉट ऑफ. तो मैं उनकी बात करूंगा. और ये मैं बार बार मैं सोचता हूँ, देखिए पॉलिटिशियंस इतना बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं. आज तक हमने किसी पॉलिटिशियन के हाथ में कभी विस्की का ग्लास नहीं देखा है या सिगरेट पीते नहीं देखा है हमने. सही बात है. ऐसा तो नहीं है वो नहीं पीते हैं. वो इतने कॉन्शियस हैं और इतने कंसिस्टेंटली कॉन्शियस हैं. दे आर एबल टू प्रोजेक्ट अ सर्टेन इमेज दैट दे हैव डिसाइडेड दे विल हैव, एंड दे हैव स्टक टू इट. उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग वक्ताओं की बात करते हैं. कुछ पॉलिटिशियंस का मैं पता नहीं नाम लेना चाहूँगा कि नहीं, वो इतना फ्लॉलेस है उनका कम्युनिकेशन. एक सेंटेंस उन्होंने बोला, अगले दिन अखबार में ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जो कि लिखेगा नहीं, और आप उसको इंटरप्रेट करेंगे अलग ढंग से, अलग अलग ढंग से. ही हैज़ हिट द नेल. ना डिसरेस्पेक्टफुल है उनका ये कहना, बट ही इज हिट द नेल. मेरे ख्याल से शरद पवार साहब को मैं बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर मानता हूँ, बहुत बढ़िया. ओरेटरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. इट्स द एबिलिटी टू क्रिएट दोस हेडलाइंस विदाउट हर्टिंग सेंटिमेंट्स. तो सारे ब्रांड्स हैं और इन्होंने सब लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज किया है. इनफैक्ट हम लोग बहुत सीखने की कोशिश करते हैं, द वे दे कम्युनिकेट, द वे इवन फिल्म्स. अब मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा. मुझे लगता है कि फिल्म का जो कम्युनिकेशन है, उनका जो पब्लिसिटी का ये होता है, बहुत सीखने की वहाँ भी ज़रूरत है. जैसे सलमान खान को मैं देखता हूँ, पिछले 10 साल में उनका जो इमेज बना है, जिस तरह से, इंसान तो वो सेम होंगे, लेकिन आज की तारीख में आप देखिएगा, मुझे लगता है कि बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड, देयर इज अ वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी प्लान which has made us look Salman Khan today very differently than we used to 10 years back or 15 years back. तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. कॉर्पोरेट्स में तो है, हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है. वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट को कोई हेड करेगा,
लेकिन ये इस तरह के जो इंडिविजुअल ब्रांड्स हैं उनके बारे में ये पब्लिक नॉलेज नहीं होता है कि साहब, लेकिन उनके पीछे ऑब्वियसली कोई थिंकिंग है, कोई स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, तो ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो आपने भी अब एक वेल सेटल्ड कॉरपोरेट लाइफ को छोड़ करके एक एंटरप्रेन्योरियल अपनी एक जर्नी शुरू की है, तो इसका रीज़न क्या है और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रीज़न तो बड़ा सिंपल सा है अमिताभ। एक भगवान ने आपको जहाँ पे पहुँचाया, मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला, बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिला। तो एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि साहब अभी क्या, इन टर्म्स ऑफ अगर आप एम्प्लॉयर ब्रांड्स देखिएगा, बहुत कम कंपनीज थी उस समय जिनको जो लगा कि मुझे ये अब्जॉर्ब कर पाएंगी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पनसेशन बट द जॉब साइज इटसेल्फ। तो हमने कुछ दिन इंतज़ार किया मेरे लास्ट एम्प्लॉयमेंट के बाद, और फिर एक समय आ गया, मुझे लगा कि नहीं, अपनी एक एडवाइजरी लॉन्च करनी चाहिए। जो भी आपकी नॉलेज है, इनसाइट है, जो आपने एक्सपीरियंस अक्वायर किया है, वो डिप्लॉय करने का टाइम है, एंड देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए। मैंने अपनी एडवाइजरी चालू की, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लग रहा है, और उसी के साथ ये एम्बेडेड है माय एडवाइजरी एंड माय पॉडकास्ट, सो ये बोथ वर्क इन टैंडम। और अभी तक का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपके साथ, आपके जैसे लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका मिलता है। सो आई हैव एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। और आप, व्हाट इज योर मंत्रा ऑफ सक्सेस? I don't know, just stay true to yourself. Whenever I'm in doubt, I go back to my father continues to be the biggest, guru for me. And बहुत evolved लोगों के साथ काम किया है, बट मुझे जब कभी भी कुछ डाउट होता है तो मेरे जहन में उनके शब्द हैं, उनका जो शब्द है वो रिवर्बरेट होता है। तो आई कीप गोइंग बैक टू हिम फॉर लेसन्स। सिंसियर हों आप, ऑनेस्ट हों, कोशिश करें कि आप विदाउट हर्टिंग सेंटिमेंट्स, आप डिफ़िकल्ट होता है कई बार, बट यू मस्ट स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। हमने कोशिश की है वो होने की, और गॉड हैज़ बीन काइंड। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि साहब कल की बात है, लेकिन वी हैव कम फार इन लाइफ। गॉड्स बीन वेरी काइंड। Gratitude is fairly important in life, very important. या सो अच्छा लगता है। और अभी बैठे हुए हैं आपके साथ हम लोग, क्या चाहिए और। सो नाउ इज द रैपिड फायर, एंड 10 सवाल अमिताभ आपको जवाब देने हैं। नो इलैबोरेशन, जस्ट yes or no, a quick one. Data or instinct? Data. One word to describe Indian politics today. Opportunistic. Yeah. Bokaro or Bombay? Bokaro. Yeah. One habit you want to unlearn or change? Impatience. You have impatient. You don't look like it. Yeah, but One election you'll never forget, and why? 2024, because the results were unexpected. Okay. Your favorite politician or political orator? Shivraj Singh Chauhan. Yeah. One political communicator you admire, India or overseas, global? Narendra Modi. Yeah. One school teacher that scared you the most? Ashok Jha, एक हमारे। Jajit. One scolding from your parents that still makes you laugh whenever you remember it? डांट पड़ती थी? डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। बिल्कुल याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? When the cameras are off, what relaxes you the most? Badminton. Playing badminton. Well, you've been a good badminton player? Average, but I play regularly whenever I am here. Wow. With that, we come to an end of this interaction, Amitabh. It was wonderful having you. And Thank you, sir.
thank you so much for through me taking my viewers through your life and those aspects of your life that are not commonly known. Amitav Tiwari has reached here. It's not been without sweat and blood. A banker, now India's top, arguably top election analyst and political strategist, and a successful entrepreneur. I couldn't be happier than this. I remember, the first meeting that we had. This is 20 years back in a train to Bombay. Looks like yesterday. So thank you. So thank you, Amitav. Thank you so much. Thank you.